Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a special video series on the monthly compilation of the PIB from the Press Information Bureau. And as you know, for the civil service aspirants, PIB is one of the important source when it's come to the prelims and mains examination. So we are doing the compilation for the month of July 2020. And in this particular edition of the compilation, we'll be covering the important news that has occurred in the month, right? So let's get started. And before I begin, I would like to tell you that this particular session is meant for some specific audience, specifically people who are preparing for the civil services examination and the aspirant who are preparing for state public service commission examination, and those of you who want to be aware of government programs and policies, right? And if you're new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube, and do not forget to hit a like button on this video. Now, starting with the first session, that is Drugs Discovery Hackathon. And before we proceed with this news, I would like to tell you just a disclaimer that many of the important topics like National Education Policy (NEP) and the Non-Personal Data Bill, right? These are some of the important topics that has not been covered in this edition of the PIB, because I have covered this in the PRS video and in the Yojana also. So what I'll do, I'll ask you to please watch that video as well. जो हमने डेली न्यूज़ एनालिसिस है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर्ड है. सो आई एम नॉट मेकिंग द थिंग्स मोर रिपीटेटिव और मोर रिपीटेशन ऑफ द कंटेंट, बिकॉज नो वी लुक फॉरवर्ड टू गिव यू अ फ्रूटफुल कंटेंट दैट इज इंडीड हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन. तो NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 और जो नॉन पर्सनल डेटा बिल है उसको ऑलरेडी हमने PRS के एडिशन में कवर किया हुआ है. सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ चेक दैट एंड गेट द डिटेल्स फ्रॉम देयर. और भी जो उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. So the first is the Drug Discovery Hackathon. So talking about the hackathon, this is known as DDH 2020, एक national initiative है for supporting the drug discovery process. This is the first of its kind national initiative जहाँ पे सपोर्ट की जा रही है ड्रग्स डिस्कवरी प्रोसेसेस को. तो पूरा एक हायरार्की बनाने की कोशिश की गई है, एक पूरा इंक्यूबेशन बनाने की कोशिश की गई है वेयर अ ड्रग्स डिस्कवरी प्रोसेस कुड बी स्टार्टेड इन इंडिया, राइट? एंड दिस प्रोसेस, दिस हैकाथॉन, द ड्रग्स डिस्कवरी हैकाथॉन इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ MHRD जो हमारी है रिसोर्स डेवलपमेंट, जो अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई है, MHRD की जो इनोवेशन सेल है उसके साथ जो AICT हमारी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो है AICT, उसके अलावा CSIR सेंटर काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं. उसके साथ के साथ जो हमारी SIDAC है और मिनिस्ट्री ऑफ गॉव जो हमारी ऑनलाइन पोर्टल है gov.in, वो मिलके जो प्राइवेट प्लेयर्स है ये सारे इनके बेसिकली ये जॉइंट इनिशिएटिव्स हैं जिनके थ्रू ये काम किया जा रहा है. सो दीज ऑल द इंस्टीट्यूशन दैट आर इंगेज वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज इन प्रीलिम्स दे कैन आस्क यू एनीथिंग, राइट? सो यू हैव टू बी थोरो विद द टॉपिक. ना बात करें पार्टिसिपेशंस की, तो बेसिकली पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स. द फर्स्ट वुड बी कंप्यूटर साइंस, chemistry, pharmacy, medical sciences, basic sciences and biotechnology. So these are the area which has been confined, which have been decided, and accordingly the people would be segregated from these sections, right? Now बात करें hackathon की, so this would be consist of the challenges that are posted as a problem statement, and based on some of the specific drugs उनकी जो discovery है एक open participation की जाएगी to solve the problem, right? और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पोर्टल है माई गॉव जो पोर्टल है दैट वुड बी यूज्ड फॉर एनी इंडियन स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट, राइट? दे कैन पार्टिसिपेट इट, एंड प्रोफेशनल और जो रिसर्चर्स हैं अक्रॉस द इंडिया, पैन इंडिया, दे वुड बी एबल टू कैन पार्टिसिपेट across the anywhere in the world. So this is something which advantage has been given to the participants. Now the second topic, that is road ranking for the quality services. This is also one of the more concern point that government of India is taking care of, because infrastructure is something which is very important for India, right? तो ये एफर्ट ली गई है फ्रॉम द NHI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इन्होंने डिसाइड किया है कि दे वुड अंडरटेक अ परफॉर्मेंस असेसमेंट फॉर द रैंकिंग ऑफ द हाईवे इन द कंट्री. सो व्हाट दे विल डू, दे विल बी रैंकिंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जो क्वालिटी है उन सारी चीज़ों की. आई विल टेल यू द पैरामीटर्स अकॉर्डिंग टू विच दे वुड बी इवेल्युएटेड. तो असेसमेंट और जो ऑडिट की जाएगी, जो रैंकिंग जो दी जाएगी, दे वुड टेक सम करेक्टिव रिकोर्स वेयर नीडेड,
and to improve the quality and provide the higher level of services in the highway commuters. जो भी इंडिविजुअल जो ट्रैवल करते हैं, और अब मैं जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं जब हाईवे पे, तो वी पे द टोल टैक्सेस, वी नीड सम बेसिक एमिनिटीज टू बी प्रोवाइडेड, राइट. तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक रैंकिंग दी जाएगी, ऑडिट की जाएगी कि व्हाट आर द क्वालिटी दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द कम्यूटर्स. नो कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं असेसमेंट के. तो 3 ब्रॉड क्राइटेरिया है. सो फर्स्ट वुड बी हाईवे की जो एफिशिएंसी कितनी है, नो हाउ लॉन्ग इट इज लास्टिंग, द क्वालिटी ऑफ द रोड, द मटेरियल दैट वाज बीइंग यूज्ड, ऑल दिस थिंग्स वुड बी टेकन केयर ऑफ. तो उसकी जो कंट्रीब्यूशन होगी पूरे 100% में. सो आई हैव डिवाइडेड दिस सेग्रीगेशन ऑफ 100%. सो फर्स्ट 45% ऑफ द वेटेज वुड बी गिवन ऑन द हाईवे एफिशिएंसी. Now the second comes to the highway safety. This is again very important because road accident in India are very high, right? So we have to maintain the safety as well. So this will constitute 35%. Now talking about the user services, that is the other amenities that would be provided. So that would contribute 20%, right? So this is something a part will be taken care of, and again it would be very necessary for the NHAI to mandate that these 3 things are taken care very carefully, right? And on the basis of the outcome जो assessment आएगी, तो authority would decide कि क्या एक comprehensive analysis होनी चाहिए to decide the level of the intervention required, और किस तरह से enhance करके वो पूरी जो service quality है national highway की उसको improve कर सकते हैं. So this the authority, that is NHAI, would be the sole authority who would be taking care of this thing. Now this will also identify and filling the gaps in designing the standard जो practices हैं, guideline, contact agreements for the NHAI projects. तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ये सब चीज़ें की जाएंगी. Now Asim Patil, this is again one of the important topic, a very possible question from the prelims examination. Asim stand for Atmanirbhar Skilled Employer Mapping, right? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट जो है, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दे हैव लॉन्च्ड AI बेस्ड असीम डिजिटल पोर्टल टू ब्रिज द डिमांड सप्लाई गैप ऑफ द वर्क फोर्स अक्रॉस द सेक्टर. बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल के द्वारा, एंड उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें डिसाइड होगी. सो द पोर्टल विल मैप डिटेल्स ऑफ द वर्क, एक पूरा जो रीजन है, जो इंडस्ट्री की लोकेलिटी है, उसके अकॉर्डिंगली कितने वर्क फोर्स है हमारे पास, कौन कहाँ पे फिट हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों की एक प्रॉपर डेटाबेस बनाई जाएगी, मैपिंग की जाएगी. एंड द डेटाबेस ऑफ द लेबर माइग्रेंट्स ऑफ द इंडियन स्टेट एंड द ओवरऑल सिटीजन वुड बी टेकन केयर ऑफ. जो वंदे मातरम मिशन है, जो जहाँ से कई लोगों को इंडिया से वापस भेजा गया दूसरे कंट्रीज में जहाँ वो रिसाइड करते हैं, और ऐसे लोग जो बाहर कंट्रीज में थे उनको इंडिया वापस लाया गया है. तो वैसे स्वदेशी स्किल्ड को प्रमोट करने की भी कोशिश की गई है, और एक स्वदेशी कार्ड बनाई जाएगी जो कि इंटीग्रेटेड होगी हमारी असीम पोर्टल से, राइट. जो आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग है, दिस इज नोन एज असीम, दिस इज ओनली दिस. तो इनका जो पूरा एम है, दैट इज टू प्रोवाइड द स्किल्ड पीपल टू फाइंड अ सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़. मान लो कोई ऐसे वर्कर है जो UAE में इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे, या कुछ उनका कोई स्पेसिफिक स्किल है पेंटिंग में या वायरिंग एक्टिविटीज़ में, कुछ मोटर्स एक्टिविटीज़ में, तो वो यहाँ पे अपने स्किल को यूज़ कर पाएंगे. नो, अ प्लेटफॉर्म, अ पोडियम वुड बी प्रोवाइडेड जहाँ पे दे कैन शो देयर पोटेंशियल. Now, Asim also referred to the data, the trends, the analytics that would describe the workforce market. तो मैप की जाएगी पूरे वर्कफोर्स को, एंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड द रियल टाइम ग्रैनुअल इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो एक बेस से सारी चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटाबेस तैयार होगी, वो आइडेंटिफाई करेगी कि किस लोगों को किस तरह की ज़रूरतें चाहिए, काम किस तरह की चाहिए, और जो एम्प्लॉयमेंट है उनके प्रोस्पेक्ट को आगे बढ़ाएगी. सपोज एक एम्प्लॉयर को अगर कोई इस तरह का बंदा चाहिए जो मोटर एक्टिविटीज़ या फिर जो AI बेस्ड काम में परफेक्ट है, तो उनको AI बेस्ड के लिए वहाँ से सीधा एक चैनल बनाया जाएगा जहाँ से they would be again hired of, right? So it is developed and managed by National Skill Development Corporation, जो हमारी NSD है, उनकी कोलैबोरेशन की गई है. बेंगलुरु बेस्ड बेटर प्लेस एक कंपनी है, वो उन्होंने दोनों के साथ कोलैबोरेट किया है, दैट वुड स्पेशलाइज इन द ब्लू कॉलर एम्प्लॉय मैनेजमेंट, right? So this is again very important news in terms of the COVID-19. The government has taken some of the corrective measures to make sure कि जो skilled workers हैं उनको proper काम मिले. Now, Draft Aids to Navigation Bill 2020.
यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की तरफ से एड्स टू नेविगेशन बिल पब्लिश की गई है फॉर पब्लिक कंसल्टेशन। तो जो लेजिस्लेशन है उसका पूरा एम है टू रिप्लेस द 19-year old लाइट हाउस एक्ट 1927। अभी तक इंडिया में जो लाइट हाउस एक्ट है उसके थ्रू सारी चीज़ें जो नेविगेशन थी वो डिसाइडेड होती थी। ना जो पूरी एम है नई बिल की, दैट एम्स टू इनकॉर्पोरेट द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, इंडिया बेसिकली इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस जो है इन फील्ड ऑफ मैरीन नेविगेशन उसको प्रमोट करेगी, और एक नया जो वेरिएंट है, जो ऑगमेंटेड वेरिएंट है, जो इम्प्रूव वेरिएंट है, उसको लाने की कोशिश की जाएगी, राइट। एंड द इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ प्रोएक्टिव अप्रोच दैट वुड बी अडॉप्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, एंड दिस वुड बी रिपीलिंग द एनार्किल कोनार्किल लॉ जो मैंने आपको बताया, 90-year old लॉ जो है लाइट हाउस एक्ट 1927। दिस इज बिफोर इंडिपेंडेंस, इट हैज ऑलरेडी बीन नो इन प्लेस। ब्रिटिशर्स हैज अडॉप्टेड दिस लॉ, उन्होंने स्टार्ट किया था। उसको रिप्लेस किया जाएगा विथ मॉडर्न एंड कंटेम्पररी नीड्स ऑफ द मैरीटाइम इंडस्ट्रीज, राइट। नाउ जो ड्राफ्ट बिल होगी दैट वुड बी एम्पावर द डायरेक्टर जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड द लाइट शिप, जिसको DGLLB कहते हैं। दिस इज एन एडिशनल पावर फंक्शन। तो जहाँ पे ट्रैफ सर्विस हो गया, ट्रेनिंग हो गई, सर्टिफिकेशन हो गई, इम्प्लीमेंटेशन हो गई, ये सारे जो ऑब्लिगेशंस हैं ये इसके अंदर कवर होते थे, जहाँ पे इंडिया भी इसकी सिग्नेटरी भी रही है इंटरनेशनल कन्वेंशन की। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस इंटरनेशनल कन्वेंशन को इंडिया साइन करती है उसके लिए उसकी इम्प्लीमेंटेशन के डोमेस्टिकली वी डू अ लॉट ऑफ वर्क। हमें अथॉरिटी बनानी होती है, उसके लिए प्रॉपर ऑफिशियल्स डिप्लॉय करने होते हैं, ताकि जो हमने जो सिग्नेटरी जिस चीज़ को साइन किया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी अपने कंट्रीज में कर रहे हैं, राइट। And it also provide the identification and the development of heritage lighthouses which is there in the India. बहुत सारे इंडिया के port countries है, Port Blair है, कैलकाटा, मुंबई, लक्षद्वीप. So these are the places where lighthouse already been placed. चेन्नई में भी है कई बार lighthouses, right? सो जो ड्राफ्ट बिल है दैट वुड कंप्राइजेज द न्यू शेड्यूल ऑफ ऑफेंसेस। अगर कोई ऑफेंसेस होती है अलॉन्ग विद द कॉमन स्टेट पेनाल्टीज जो होंगी उसको डिसाइड करेगी। जो नॉन कॉम्प्लाइंसेज होते हैं उनको देखा जाएगा। जो डायरेक्टिव्स हैं इशू किए गए हैं हमारे केंद्र सरकार की तरफ से फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट वुड बी अगेन टेकन केयर ऑफ। कोई भी ऐसी बॉडीज जो कि इंटरेस्टेड है इस चीज़ को लेकर के उसके सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा इन द ड्राफ्ट बिल, राइट। Now, Consumer Protection Act 2019. This is again there in the news. Already we have discussed this here and there in the daily news analysis as well. तो मैं फिर भी आपको यहाँ पे डिटेल में एक बार बता दूँ चीज़ें। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है दैट कम इनटू फोर्स ऑन 20 जुलाई 2020, और जो एक्ट है इस्टेब्लिश करती है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसको CCPA भी कहते हैं। एंड दिस CCPA इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो पूरा जो एम है इसके पीछे इज टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स द कंज्यूमर राइट। तो कंज्यूमर राइट को बढ़ावा दिया गया है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मेंस में इस बार कंज्यूमर राइट पे एक सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। तो ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2020 और 2021 के लिए भी जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ जो CCPA है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी होगी, ये एम्पावर करेगी टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इन द वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट। अगर किसी कंज्यूमर राइट की राइट्स वायलेट होती हैं तो ये बॉडी है जो कि सारी चीज़ों को टेक केयर करेगी। आप अपने रिड्रेसल मैकेनिज्म यहाँ पे कर सकते हैं। यू कैन आस्क फॉर द रिड्रेसल ऑफ दैट, राइट। तो ग्रीवांसेस यहाँ पे एड्रेस की जा सकती है। नाउ द रूल्स टू प्रिवेंट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ई-कॉमर्स में आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, टाटा क्लिक, ऐसे कई ब्रांड्स हैं जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। जोबोंग, ये सारे ब्रांड्स इसके अंदर कवर्ड होंगे, राइट। So under this act, e-commerce entity that would require the information to return, refund, exchange, warranty, guarantee, delivery, shipments, ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि when it come to the e-commerce company, there are some technicalities because of which the consumer is not being well aware, और वहाँ पे उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो लॉ ने सारी चीज़ों को क्लियर किया कि जो रिटर्न होगी, रिफंड होगी, एक्सचेंज होगी, वारंटी होगी, गारंटी होगी, डिलीवरी होगी, मोड्स ऑफ पेमेंट होगी, जो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, वो सारी चीज़ों को टेक इन प्लेस किया जाएगा। एंड दिस शुड बी मेड कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट एंड प्रो कंज्यूमर, राइट। सो दिस इज द एंटायर एम ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। नाउ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो यहाँ पे जो रेसिपेंट होंगे उनको कंज्यूमर कंप्लेंट 48 आवर के अंदर उनको एड्रेस करना पड़ेगा, एंड द कंप्लेंट विद इन मंथ ऑफ द डेट अंडर द एक्ट। और मैक्सिमम जो है वो 1 महीने का तारीख रखा गया है बेसिकली टू एड्रेस द एंटायर इशू, राइट। एंड द न्यू अथॉरिटी वुड बी कंसेप्ट ऑफ द, बात करेगा प्रोडक्ट लाइबिलिटी की,
तो वो एक स्कोप रखा गया है जहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर हो, सेलर्स हो, वो सारे चीज़ों को अगर ज़रूरत पड़े तो वो एज एन इंडिविजुअल कस्टमर को कंपनसेट भी करेंगे अगर कोई लॉस होता है तो। अल्टरनेटिव डिसोल्यूशन रिस्यूट, जो ADR भी कहते हैं इसको, ADR स्टैंड फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, वो भी की जाएगी। एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा जहाँ पे मेडिटेशन की जाएगी थ्रू द न्यू एक्ट। सो आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलिएशन एक्ट बड़ी कंपनीज के लिए की जाती है, बट छोटे कंज्यूमर लेवल पे मेडिएशन का भी प्रोसेस रखा गया है। एंड देयर वुड बी नो अपील अगेंस्ट द सेटलमेंट थ्रू मेडिएशन, जो एक बार जो जजमेंट आ गई मेडिएशन के थ्रू, उसके बाद कोई आप नेक्स्ट अपील नहीं कर सकते हो। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट, टू बी नोटेड। एंड देयर विल बी नो फी फॉर फाइलिंग द केसेस अप टू 5 लाख रुपीज़। 5 लाख के अंदर आपकी अगर कोई ऐसी कोई केसेस है ई-कॉमर्स रिलेटेड, तो उसमें आपको कोई भी फी नहीं देनी है। नाउ एक्सेलरेटेड विज्ञान, तो यहाँ पे जो योजना है एक्सेलरेटेड विज्ञान योजना, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो AV का जो पूरा एम है टू प्रोवाइड द सिंगल प्लेटफॉर्म रिसर्च, एंटरप्रेन्योरशिप, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम एंड वर्कशॉप अक्रॉस द कंट्री, राइट। तो सबसे पहले प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पूरा एम है टू इनकरेज द हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च, प्रिपेयरिंग साइंटिफिक मैन पावर दैट लीड टू रिसर्च कैरियर नॉलेज, राइट। और जो AV है दैट वुड बी एन इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथ द मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई रिसर्च पोटेंशियल, मेंटोरिंग, ट्रेनिंग, और जो हैंड ऑफ वर्कशॉप्स की जाती हैं, लोगों को वर्कशॉप दी जाती है। कई ऐसे टेक्निकल एजुकेशंस हैं जिसमें वर्कशॉप लोगों को करवाया जाता है, स्टूडेंट्स को करवाया जाता है। सो दैट वुड बी प्रोवाइडेड एट द नेशनल स्केल, राइट। ना बात करें इस विजन की, बेसिकली पूरे एम की जो AV है उसका क्या एम है। सो इट एम्स टू एक्सपैंड द रिसर्च बेस विद इन 3 ब्रॉड गोल्स। 3 बड़े कैटेगरी बनाए गए हैं जिन पे AV का जो मेन रिसर्च का जो ओरिएंटेशन है, जो थीम होगी, वो इन तीनों पे डिसाइडेड होगी। सो द फर्स्ट इज consolidated aggregated of all scientific program. Second is initiating high lead orientation workshop, ये दूसरा है। एंड तीसरा एंड द एंड इज creating opportunities for the research entrepreneurship for those who do not have the access to resources and facilities. So these are 3 main broad goals and criteria according to which the AV would be working, right? कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इसके जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो पहला कंपोनेंट है अभ्यास प्रोग्राम, जहाँ पे कोशिश ये की गई है कि जो रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं, जो डेवलपमेंट है PhD स्टूडेंट के, जो PG स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए किया जाएगा। इसके भी 2 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है हाई एंड वर्कशॉप, जिसको कार्यशाला के नाम से जाना जाएगा, दिस इज द हिंदी वर्जन, एंड रिसर्च एंटरप्रेन्योरशिप, ओके, वृत्तिका जिसको कहेंगे। नाउ जो AV है दैट वुड वर्क ऑन द मिशन मोड, पर्टिकुलरली जैसे कंसोलिडेटेड है, एग्रीगेटेड साइंटिफिक इन्वेंट्स हैं, उन सारी चीज़ों पे ये काम करेगी, मीन्स द साइंटिफिक इन्वेंट्स पे काम होगी। अनदर AV की अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो सम्मोहन है, दैट इज अ सब डिविजन, उसमें उसके भी 2 पार्ट रखे गए हैं, दैट इज संयोजिका और संगोष्ठी। तो इट इज़ एन ओपन एंड प्रोग्राम टू कॉटलैग द जो कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसीज हैं वो इनको ध्यान देगी। उसके बाद अगर बात करें संगोष्ठी की, तो दिस इज़ अ प्री एग्जिस्टिंग प्रोग्राम ऑफ द ACRP, फाइन। तो कंपोनेंट्स आप एक बार देख लें, बेसिकली जो मेन इसका जो जिस्ट है वो मैंने आपको पहले बता दिया, दिस इज़ द डिटेल पार्ट ऑफ इट। तो कई बार हो सकता है प्रीलिम्स में इसमें सवाल ना पूछे जाएं, बट जो इसके बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं उस पर सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। नाउ स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर द NBFC, राइट। तो यहाँ पे इस जो स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम बनाई गई है हमारे नेशनल हाउसिंग फाइनेंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को लेकर के, उसके बारे में बात करेंगे। तो इन व्यू ऑफ इम्प्रूविंग द लिक्विडिटी पोजीशन हमारे NBFCs को और HFC को लेकर के स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम बनाई गई है, लाया गया है, जिसमें 30,000 करोड़ के आसपास की जो अमाउंट है उसके साथ इनको लॉन्च किया गया है। एंड RBI विल प्रोवाइड द फंड फॉर द स्कीम बाय subscribing the government guarantee of the special securities would be provided by the trust, right? So government of India would provide the unconditional irrevocable guarantee to the securities issued by the trust. तो government of India जो है ये इनकी बैकिंग करेगी, और स्कीम इज बीइंग लॉन्च्ड बाय द स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो SPV होगा उसके थ्रू इसको लॉन्च की जाएगी इन अ फॉर्मेट ऑफ SLS ट्रस्ट, दैट इज SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड है, इस तरह के कुछ ट्रस्ट के थ्रू इनको फाइनली एग्जीक्यूट किया जाएगा। और NEFC, कोई भी FC है जो हमारे NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होंगे,
उसमें माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी रजिस्टर्ड हैं आरबीआई के साथ, वो इंक्लूडेड होंगे। ऐसे कंपनीज जो कि एचएफसीज हैं, हाउसिंग बैंकिंग कंपनीज हैं, नेशनल हाउसिंग बैंकिंग के अंदर जो आते हैं, उन सारी चीज़ों को विद इन द नेशनल हाउसिंग बैंकिंग एक्ट 1987 दे वुड कंप्लाई द ब्रॉड कंडीशन एंड दे पीपल वुड बी एलिजिबल फॉर द फंडिंग, राइट। तो कुछ और क्राइटेरियाज हैं जिसमें मैंने आपको बताया किस किस फैसिलिटीज़ के लिए। So the compliances within the RBI regulatory on the capital education पहला। Now second is the net NPA less than 6%, ये time decided है from 31st of March 2019। जो net profit होगी at least 1 year and 2 proceeding on the financial years, rated and investment grade in the rating agency. The scheme would remain open for 3 months for making the subscription by the trust. And the finances would be used by the NBFCs and only to replace the existing liabilities and not to expand the assets. तो इन सारी चीज़ों पे ये जो कंप्लाइंसेज है ये रखी गई है, इन क्राइटेरिया को मीट करना होगा। अब बढ़ते हैं कुछ शॉर्ट्स न्यूज़ की तरफ, जो आज के इस मंथ के पीआईबी में कुछ शॉर्ट न्यूज़ है जो कि एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, इन्होंने लॉन्च किया है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये हमने ऑलरेडी अपने डेली न्यूज़ एनालिसिस, जो डेली सीक्वेंस ऑफ जो एनालिसिस होती है यूट्यूब पे, वहाँ पे भी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। तो पूरा एम जो है टू फैसिलिटेट द नीडेड ऑफ इन्वेस्टिसाइजन, इन्वाइटिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, डेयरी एंड मीट प्रोसेसिंग जो वैल्यू एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, उस पे की तरफ जोर है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन को लेकर के। और जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज होंगे दैट वुड बी फार्म प्रोड्यूस, जो एफपीओज होंगे, एमएसएमईज हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं, जो कई बार इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरियल लोग भी होते हैं जो कि इसमें है, तो मिनिमम 10% मार्जिन कंट्रीब्यूट करके दे वुड बी गेटिंग दिस फंड। नाउ बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट वुड प्रोवाइड 3% ऑफ द इंटरेस्ट सबवेंशन, जो एलिजिबल बेनिफिशरीज होंगे उनको 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलेगा। एंड दिस वुड बी अ 2 ईयर मोराटोरियम, 2 साल के लिए उनको लोन पे मोराटोरियम भी दी जाएगी, प्रिंसिपल लोन पे, एंड 6 ईयर ऑन द रीपेमेंट आफ्टर दैट, ठीक है, 6 साल तक की अवधि मैक्सिमम होगी। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड बी सेटिंग अप द कैरेट, जो क्रेडिट गारंटी फंड है, जो कॉर्पस बनाई जाएगी 750 करोड़ के आसपास, जिसको मैनेज करेगी नाबार्ड। सो दिस पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ स्टडी इंडिया प्रोग्राम, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी है, उन्होंने कंडक्ट किया था इंडिया के जो स्कॉलिस्टिक असेसमेंट है टेस्ट को, उसमें 2020 को लेकर के स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम बनाई गई है। सो नियरली 5000 कैंडिडेट फ्रॉम नेपाल, इथोपिया, भूटान, बांग्लादेश, युगांडा, तंजानिया, रवांडा, श्रीलंका, केन्या, जिम्बाब्वे, Indonesia and Mauritius. I'm naming this country because this are very important. Many of time UPSC tend to ask the country specifically. So just to remind you, अब इसके बारे में एक बार ज़रूर याद रखना, कोई निमोनिक्स बना लेना so that you get an idea, right? तो this would be conducted by the internet mode on the National Testing Agency जो NTA बनी है। और जो ECDI है वो एक PSU है, बेसिकली MHRD के अंदर काम करती है, दैट वुड बी द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं, जो इंडिया स्टैट है दैट बेसिकली इज एन एग्जाम ग्रांटेड फॉर द स्कॉलरशिप एडमिशन्स के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को सेलेक्ट करती है। और स्टडी इन इंडिया के प्रोग्राम की बात करें तो जो हमारी MHRD है, नाउ दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है NEP 2020 में। सो विच वुड द फॉरेन स्टूडेंट जो हैं 116 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए फ्रॉम इंडिया इन द ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट प्रोग्राम्स के लिए। जो सिलेक्शन होती है स्टूडेंट की, दैट इज़ बेस्ड ऑन द मेरिट, क्लास 12 के लेवल को देखते हुए किस किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही है, एग्जाम में कैसे परफॉर्मेंस रहे, उन सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है। एंड अबाउट 2000 स्टूडेंट आर गिवन स्कॉलरशिप वाइल सम ऑफ अदर आर गिवन फी डिस्काउंट बाय द इंस्टीट्यूशंस। तो या तो उनको एडमिशन दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, या तो उनके फीस में कुछ कंपनसेशन, उनको रिलैक्सेशन दी जाती है। ना मौसम ऐप की अगर बात करें तो मौसम बेसिकली जो भी चीज़ें वेदर से रिलेटेड होगी, सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ वुड बी लॉन्चिंग दिस ऐप। दिस इज़ बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो हमारी IMD है, रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है विथ रिगार्ड्स टू द एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द वेदर इन इंडिया, राइट। तो जो मोबाइल ऐप है ये डेडिकेटेड होगी जनरल पब्लिक के लिए,
जो कि कम्युनिकेट कर पाएंगे वेदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो ल्यूसिड मैनर में, बहुत ही विदाउट एनी टेक्निकल जागरन्स नहीं होंगे, कुछ भी एक ल्यूसिड तरीके से इनको रखा जाएगा ताकि आम लोगों को चीज़ें समझ में आए. एंड यूज़र कैन एक्सेस वेदर फोरकास्ट, रडार इमेजेस, प्रोएक्टिवली वार्न इमेजिंग, किसी तरह के कोई इवेंट्स होने वाले हैं वेदर रिलेटेड, सो द एंटायर अपडेट वुड बी देयर फ्रॉम द मौसम ऐप. तो मौसम ऐप के कुछ 5 सर्विसेज हैं. पहली जो है वो है करंट वेदर कंडीशन क्या है पूरे पैन इंडिया में, वहाँ उसके बारे में. नाउ कास्ट के बारे में पता होगा. सिटी फॉरकास्ट क्या है. वार्निंग अगर किसी तरह से, अगर IMD ने, जो हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से अगर कोई चेतावनी आई है, वार्निंग आई है, वो फोरकास्ट की जाएंगे. और जो रेडार प्रोडक्ट्स हैं वो भी होंगे. So this app will help in stimulating the weather information and attractive user-friendly manner, right? और जो मोबाइल ऐप होगी, this would be designed by the ICRI SAT, जो डेटा एग्रीकल्चर सर्विसेज हैं, डे, उसके थ्रू. और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है, पुणे में ये सिचुएटेड है, और IMD, ये 4 संस्थान है, ये मिलकर काम करेंगे, राइट. नाउ प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. तो स्कीम एनविसाइज की गई है जहाँ पे 3 बल्क जो ड्रग्स है पार्क बनाए जाएंगे. ग्रांट दी गई है, दे वुड बी गिवन 90% ऑफ द प्रोजेक्ट केस्ट नॉर्थ ईस्ट एरिया में, और जो दूसरे स्टेट है वहाँ पे 70% होगा. तो आपको पता है नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है वहाँ पे हमेशा गवर्नमेंट की फंडिंग अधिक रहती है, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली सामानों का आना जाना बहुत अलग कॉस्टिंग है जो भी ऐड होती है. बाकी दूसरे जो भी और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं उनके लिए 70% होगी. तो अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट द ऑल द स्टेट वुड बी गेटिंग 70%. तो मैक्सिमम अमाउंट रखी गई है बल्क ड्रग पार्क के लिए, दैट इज 1000 करोड़ रुपीस के आसपास. एंड द स्टेट वुड बी सेलेक्टिंग थ्रू द चैलेंज मेथड. तो ये एक बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ प्रेरोगेटिव होगी कि वो डिसाइड कर पाएँ कि कहाँ पे बल्क ड्रग पार्क बनानी है, राइट. नाउ स्टेट बेसिकली सेट करेगी, दैट वुड डिसाइड कि 24/7 उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दिया जाए, वाटर दिया जाए, ताकि ये बेसिक नेसेसिटी है जो कि ड्रग बनाने में ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की. और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग की जाएगी, इंसेंटिसाइज किया जाएगा स्टेट एप्लीकेशंस को, जो बेसिकली जो बल्क ड्रग्स इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन पावर की प्रोवाइड कैसे करनी है, अवेलेबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिकल क्लस्टर्स जो आते हैं स्टेट की तरफ से. सो स्टेट की एक बहुत ही अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस पर, राइट. और जो टोटल फिनांसेस आउटले रखी गई है ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिए, दैट इज 3000 करोड़ रुपीज़, राइट. ना बढ़ेंगे कुछ और मिसलेनियस न्यूज़ की तरफ, जो छोटे न्यूज़, वन लाइनर यूज़ हैं, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि जो भी PIB में कुछ भी छोटे न्यूज़ जो आपके एग्जाम से चीज़ें रेलेवेंट हैं उनको हर सीरीज़ में कवर किया जाए. तो कुछ भी छोड़ने की कोशिश नहीं की है. जो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फिल्टर आउट करके हमने इसको सीरीज़ को बेसिकली, जब भी वी टेक केयर ऑफ ऑल द न्यूज़ दैट इज़ देयर, तो मिसलेनियस न्यूज़ में सिंगल न्यूज़ कवर करेंगे, राइट. तो नेशनल एटलस एंड थीमेटिकल मैप ऑर्गेनाइजेशन, नाम तो भी जिसको कहते हैं, वो फंक्शंस कर रही है एज सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट. तो इन्होंने बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के साथ कोलैबोरेट करके ये बनाया गया है. एंड दिस वुड बी अपडेटिंग द वर्जन ऑफ COVID-19 डैशबोर्ड्स, राइट. इसकी हेडक्वार्टर है कैलकाटा में. नाउ द सेकेंड, ऑपरेशन समुद्र सेतु. तो ऑपरेशन समुद्र सेतु आपको पता है मई 2020 में लॉन्च की गई थी. बेसिकली जो भी ऐसे इंडियन हैं उन बाहर से जो रहते हैं उनको रिपेट्रिएट किया गया था इंडिया में. और इसमें इस स्कीम के थ्रू, समुद्र सेतु के थ्रू, ऑलमोस्ट क्लोज टू 4000 पीपल हैव कम बैक टू इंडिया. इंडियन नेवल शिप जो जासालवा है, उन्होंने ये सारी चीज़ों को दिया, बेसिकली उंगली जामा पहनाया है. एंड दिस हैज़ टेकन 55 days टू टेक द 23,000 किलोमीटर्स. इंडियन नेवी ने प्रीवियसली इस तरह के टास्क और भी किए थे, जैसे ऑपरेशन सुकून है बहरूत में जो की गई थी, राइट. अभी जहाँ पे ब्लास्ट हुई है और वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर दिया गया बहरूत में, लेबनान. एंड ऑपरेशन राहत इन द येमेन 2015, ये 2006 की मैं बात कर रहा हूँ. एग्जाम्पल अगर आप मेंस में लिखना है तो कोड ज़रूर करें. नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम जो इंडियन रेलवेज़ हैं उनके तरफ से पार्सल है वो बांग्लादेश को दिया जाएगा. जो चिली है उनको ड्राई चिलीज गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से, दिस वुड बी सेंट बैक टू बांग्लादेश. तो ये एक एग्रीमेंट हुई है. सो गुंटूर है, दिस इज सराउंडिंग द एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश, वेल नोन फॉर चिलीज कल्टिवेशन. जो मिर्ची है, लाल मिर्च, काफ़ी तीखी होती है वहाँ की लाल मिर्च. तो गुंटूर की एक अलग वैरायटी है बेसिकली चिलीज़ की. आप गूगल करके इमेज ज़रूर देखें, हो सकता है आप में से कई लोगों ने इसको यूज़ भी किया होगा. सो चेक दैट, दिस वुड बी इंपॉर्टेंट. तो गुंटूर की सानाम चिलीज़ जो हैं,
दैट इज़ उनको GI टैग भी मिला हुआ है. सो GI टैग जो ऐसी चीज़ें जो GI टैग के अंदर है वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. और यूपीएससी ने 2015 में GI टैग से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे हुए हैं. So India stand first in the production of chilies and Andhra Pradesh leads its production. तो आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है चिलीज में. उसके बाद ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है. यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूँ. इन्होंने न्यूमेरोलॉजिकल पॉलीसेक्राइड कॉन्जुगेट वैक्सीन बनाने की बात की गई है. दिस वुड बी डेवलप्ड बाय द सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. अभी तक आपने न्यूज़पेपर में ये सारी चीज़ें पढ़ ली होगी, बट ऑल्दो दिस वाज रिपोर्टेड, सो आई फील दैट दिस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कम्युनिकेट दिस थिंग्स. सो इम्यूनाइजेशन है इन्वेसिव डिसीजेस को लेकर के. स्टीरियोकोकस निमोनियाज जो हैं उनमें इन्फेंट्स में बेसिकली ये चीज़ें होती हैं जिनको इंट्रामस्कुलर इंटरवीन किया जाता है, इंजेक्शन दी जाती हैं. सो दिस हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. सो द फर्स्ट इंडिजिनस दैट वाज डेवलप्ड इन द फील्ड ऑफ निमोनिया. और विश्व में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म ने जिसको नहीं किया था. जो हमारी SII है, बहुत ही रेपुटेड संस्थान है इंडिया की, इन्होंने विश्व में पहली बार इस तरह से इंडिजिनस वैक्सीन बनाया फॉर निमोनिया, राइट. और मिनिस्ट्री ऑफ HRD की तरफ से कोरोस्योर नाम की एक ड्रग्स डायग्नोस्टिक किट्स बनाई गई है. IIT दिल्ली के स्टूडेंट ने इसको बनाया है. सो एक बेसिकली बात की गई है, एक बहुत ही अफोर्डेबल तरीके से डायग्नोस्टिक किट डेवलप की गई है जो लोगों को मदद करेगी कोविड-19 के टेस्ट को लेकर के. एंड इट वुड ऑल्सो बी द फर्स्ट फ्री एसे प्रूव ऑफ कोविड-19 दैट इज प्रूव्ड बाय द ICMR. तो इसकी जो अप्रूवल है वो भी ICMR ने दे दी है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कुछ न्यूज़ है. यहाँ पे सेरो सर्वेलेंस को लेकर के बातें की गई है. जो दिल्ली में सेरो प्रेवलेंस सर्वे की गई थी, वहाँ पे जो पॉपुलेशन पाई गई है वहाँ पे 23% पॉपुलेशन ऐसी है जिनमें ऑलरेडी कोविड-19 के जो एंटीबॉडीज़ हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं वो बनी हुई थी, राइट. तो बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से ओनली 2% ऑफ द पीपल आर इन्फेक्टेड, बट यहाँ पे जो केसेस है वो और ज़्यादा हैं. उससे पहले लोग इन्फेक्ट भी नहीं हुए, सिम्टम्स भी नहीं आया, बट ऑलरेडी उन पे एंटीबॉडीज़ बन चुकी है. तो कुछ अच्छी भी न्यूज़ है बेसिकली, बट एट द सेम टाइम अभी सेकंड सर्वे भी की गई है, उसको देखना, उसके रिजल्ट्स कब आते हैं, फिर वी विल गेट द क्लैरिटी कि एक्चुअल में क्या ग्राउंड रियलिटी है, राइट. India Idea Summit. This was hosted by the US India Business Council. This marked the 45th anniversary of the formation of the council. तो 45th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है. और थीम जो है इस ईयर का दैट इज बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर. थीम्स कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. यूपीएससी के एग्जाम में डायरेक्ट थीम्स पूछ लिए जाते हैं, तो ये थीम्स भी आप जरूर ध्यान रखें. India and European Union have renewed their agreement on the scientific and technological cooperation for the next 5 years. So these were some of the short news, some miscellaneous news that would be important for the civil services prelims examination. और मैं ये बता दूं कि वी हैव अ डेली टॉपिक वाइज न्यूज़ एनालिसिस एवरी डे. यहाँ पे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं उस दिन के, उसको डिस्कस किया जाता है. ये डेली बेसिस पे होती है, हर दोपहर आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप इसको ज़रूर देखें एंड यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम देयर, राइट. तो मेक योरसेल्फ प्रोडक्टिव ताकि आप जो स्टैटिक पोर्शंस हैं प्रीलिम्स के लिए उसको पढ़ पाएँ और न्यूज़ के सेक्शन यहाँ से कवर कर लें, राइट. और अगर कोई भी कंसर्न हो तो हमें ज़रूर बताएं. विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू. फॉर टाइम बीइंग आई एम साइनिंग ऑफ. विश यू ऑल द बेस्ट. Stay home, stay safe. Thank you so much.